I'm just wondering, first of all, do you have any words to describe that innings by Surya Yadav? One of the best in the T20s that I've seen, especially when you're chasing a score like that, and to come out and bat the way he did shows the quality of a batsman. Honestly, we were 3 down, and we wanted to dig in, get that partnership going, and bat as long as possible. He pretty much did everything right today. I'm pretty sure slightly disappointed that he couldn't be right till the end, but nothing taking away from that kind of knock. You don't get to see that every now and then. So we will take that with both hands as a team, and I'm pretty sure with about him as well. He'll be very happy with how he responded to that situation where he went to bat in. We know the quality of him. He's got shots all over the ground, as you saw clearly, maneuvering the field, playing all sides of the ground. So it's a very rare quality that a batter can have, and Surya definitely has all of that. So it's a very good sign for us, to have a player like him in the squad, and pretty sure he's going to go strength to strength from here on now. Hi, Rohit. Just wanted to ask about Virat and his approach in the past couple of games. It's been very positive from the outset. Is that something that he's come up with himself, or is that a team instruction, or a bit of both? I mean, it's a bit of both. We as a team we want to play in certain way, and every players need to buy into that thought process. Otherwise, it's not going to happen for you. And all the players, all the batters who are part of this squad, are willing to take that extra risk and go and see what extra they can do with the bat. It's important to find out within yourself, to try and do different kind of things. And unless you try it, you will never be able to find out. So I think it is something that we've been trying to do for a while now, and I've said it at the press conference at the start that at some days it might just come off, some days it might not, but we don't want to be afraid of going and taking that extra risk. That's how we're going to learn as a team, and that's how we're going to move forward as a team as well. So it's everyone's thought process. Everyone, are quite comfortable with that idea as well. So yeah, that's the kind of direction the team is willing to move. जब तक खेलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा अभी वो देखो, फर्स्ट गेम साउथहैम्पटन में कुछ लड़के मिसिंग थे, एजबैस्टन में कुछ लड़के वापस आए, यहाँ पे कुछ लड़के मिसिंग थे. तो जैसा बैक टू बैक मैचेस है हमारे काफ़ी, तो वी हैव टू रोटेट प्लेयर्स, ट्राई एंड सी एवरीवन एट द सेम टाइम. वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमें लड़कों को तैयार करना है, और तैयार करने के लिए उनको मौका देना बहुत ज़रूरी है, देखने के लिए कि उनमें क्या काबिलियत है. तो जब तक हम उन लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे हमें पता नहीं चलेगा. तो और जब सीरीज़ आप जीत जाते हो और आपके पास एक मैच बचा है, तो बेस्ट चांस होता है वहाँ पर लड़कों को देखना कि उनके पास क्या एबिलिटी है. हम आईपीएल में देखते हैं इन लड़कों को अच्छा करते हैं, बट इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा अलग होता है. यहाँ पे टीम का जो गेम प्लान है वो अलग होता है फ्रेंचाइजी क्रिकेट से. तो वो सब चीज़ सीखने की उनको ज़रूरत है. इस टीम में मेरा क्या रोल है, इस टीम में कोई बैट्समैन है उनका क्या रोल है, और तो इसलिए वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है. और मौका नहीं देंगे तो देखने का कोई मौका नहीं मिलेगा हमें, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए. अच्छी बात है कि जिस तरीके से वो ओपनली अपने आप को पेश कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर की जो बात कर रहे हो
उसमें इनको डालना, वो फ्राइंग पैन से वो पहाड़ना, ये एक कप्तान के हैसियत से कितना जरूरी है? नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है। कप्तान, कोच, सिलेक्टर सबका रोल है इसमें, क्योंकि हम एक चीज़ करेंगे, वहाँ पे सिलेक्टर्स लोग कुछ और करेंगे, तो वो तालमेल जो है वो नहीं कभी हो पाएगा। तो आई थिंक जो टीम बनाते हैं उन सबको एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, और इन लड़कों को छूट देना भी बहुत ज़रूरी है। उनको बोलना बहुत ज़रूरी है कि यार आप अपना गेम खेलो, कोई प्रेशर नहीं है। वो मैसेज कंसिस्टेंटली अगर जाता रहेगा प्लेयर्स के पास, तो उन्हें भी फ्रीडम मिलेगा खेलने का, एक्सप्रेस करने का, क्योंकि लड़कों के पास काफ़ी टैलेंट है, और वो टैलेंट हम जब तक उनको छूट नहीं देंगे तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक हम देखते आ रहे हैं कि कुछ लड़के दबाव में खेलते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो बिंदास खुल के खेले, और उस खुल के खेलने के चक्कर में आप अपने आप का जो एक्सपेक्टेशन होता है उससे ज़्यादा करते हो। तो जैसे आपने एक एग्जांपल आज देखा, आयरलैंड में एक एग्जांपल था, नाम नहीं लूँगा किसी का, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो वैसे लड़के बाहर निकल के आते हैं, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है उनको फ्रीडम देना और एक्सप्रेस करना कि हम एज अ टीम मेंबर, एज अ टीम मैनेजमेंट हम क्या चाहते हैं तुम लोगों से। तो वो मैसेज कंसिस्टेंटली जाता रहेगा तो वो हो पाएगा। अगर हम आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, तो उससे होगा नहीं। अच्छा से जीती, लेकिन एक जो सवाल सब लोग कर रहे हैं, आप तो एक्सपर्ट भी बिजनेस कर रहे हैं, और शायद एज ए कैप्टन आपके लिए क्या ये ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, इसको कैसे हैंडल करें? विराट कोहली की फॉर्म, रन बड़े अक्रॉस द फॉर्मेट, स्पेशली T20 में अब ये डिबेट होने लगी कि भाई नए लड़के आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या किया जाए, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, लेकिन ये चीज़ एज ए कैप्टन, एज ए कोच आप लोग को कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालती है इन टर्म्स ऑफ ही सच ए ग्रेट प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन है, ये आपकी लीडरशिप के लिए कितना डिफिकल्ट है? देखिए, हमारे लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम बाहर का कुछ सुनते नहीं है, और ये एक्सपर्ट लोग, मुझे पता नहीं कौन है, एक्सपर्ट क्यों बोला जाता है उनको, मुझे वो नहीं समझ में आता है। नहीं, देखिए वो बाहर से गेम देख रहे हैं, उनको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारा एक कुछ थॉट प्रोसेस है, टीम बनाते हैं हम लोग, उसके पीछे काफ़ी चर्चा होती है, उसके पीछे काफ़ी थिंकिंग होती है, लड़कों को बैक किया जाता है, लड़कों को मौका दिया जाता है। तो ये सब चीज़ बाहर के लोगों को पता नहीं चलती है। तो इसीलिए मैं बाहर क्या हो रहा है, अंदर बाहर क्या हो रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर जो हो रहा है हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फॉर्म की बात करते हो, फॉर्म ऊपर नीचे सबका होता है, प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये हम हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स बाहर निकलते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेयर का क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होता, तो उस क्वालिटी को बैक किया जाता है, क्योंकि प्लेयर के पास क्वालिटी है, और हम वो क्वालिटी देख के प्लेयर को बैक करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, XYZ के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली इतने सालों से अच्छा करते आ रहा है, तो एक दो सीरीज या एक आध साल में वो अनदेखा नहीं होना चाहिए। उसको कंप्लीटली समझने में टाइम लगता है लोगों को, बट हम लोग जो अंदर है टीम के अंदर, और जो टीम चला रहे हैं, उन लोगों को पता है कि उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है। तो मैं बाहर वाले से यही दरख्वास्त करूंगा, ठीक है, आई मीन they've got all the right to talk about it, बट हमारे लिए आई थिंक वो चीज़ उतना मैटर नहीं करता है। रोहित, these games are coming thick and fast now, 2 दिन के बाद वनडे सीरीज है, उसके बाद वेस्ट इंडीज में हम 3 वनडे है, तो नवंबर तक जो है वनडे हमारे लिए लो प्रायोरिटीज है, क्योंकि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये जो 3 वनडे आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ, इसको आप कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपके पास आई मीन हमारे लिए ज़रूरी है, इंडिया के लिए जो भी मैचेस है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं खेल सकते कि ODI को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से प्लेयर का वर्कलोड कितना है, किसको रेस्ट देने की ज़रूरत है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट
मैंने टॉस पे भी यही उन्होंने ये सवाल किया था, मैंने तभी भी उनको यही समझाया था कि हम चेंजेस करेंगे यस, बट हमारा गोल है टीम मैच जीतना। तो वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वाइट बॉल क्रिकेट समझना, कैसे खेलना है। नए लड़के लोग काफ़ी खेल रहे हैं, तो टी20 क्रिकेट जो होता है वो थोड़ा सा 50 ओवर जो क्रिकेट है वो टी20 का एक्सटेंशन है। तो आपको भी टी20 में आप जितना रिस्क लेते हो शायद ओडीआई क्रिकेट में थोड़ा सा कम लोगे, बट रिस्क लेना है उसमें भी। ऐसा नहीं है कि हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें खुल के खेलने की आदत डालने की ज़रूरत है, और वो खुल के जब हम खेलने की कोशिश करते हैं तो उसमें फेलियर्स आते हैं, परफॉर्मेंस में फेलियर्स आते हैं, मैच जीतने में फेलियर्स आते हैं, बट हमें उस चीज़ से सीखने को कितना मिलता है। हमारे लिए हम बड़ा पिक्चर देखते हैं, हम छोटा पिक्चर देखते नहीं। वैसे भी इंडिया में 2-2.5 घंटे का पिक्चर तो बनता ही है, आधे घंटे का पिक्चर तो बनता नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बड़ा पिक्चर देखना, छोटा नहीं। तो हमारे लिए ये सब जो चीज़ें हैं वो बड़े स्कीम ऑफ थिंग्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करते हैं, खेलने का तरीका बदलते हैं। तो आई थिंक वो सब चीज़ हमारे लिए क्रूशल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज तो करने की ज़रूरत है, और हम अभी देख रहे हैं कि वो चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है। Captain, obviously having ticked most of the boxes, winning a series of T20 series, the leader for the World Cup. What have been the biggest takeaways for Team India in this series? The biggest takeaway, I guess, has been the approach of each and every individual who has played in this tournament, in this series for us. How they've come and relished the moment in the middle, taking on the opportunity, taking on the opposition, taking the extra risk. The mindset is something that we are trying to change, and that, I guess, is the biggest takeaway from all the players. They are willing to do that, they are willing to take that risk. And when I go and talk to certain individuals or the players, I hear the same kind of response from them. So that is the biggest takeaway. Obviously, while doing that, like I said just now, results will go here and there, but for us, we are looking at the larger picture, and to achieve that, we will make some mistakes. But as a management and as a captain as well, I'm pretty much okay with that. But yeah, honestly, to come here and win a series in England is not easy. It was a challenging one for us. So winning always gives you confidence. So, we can take that confidence from this series and try and move forward and see how we can improve further in all the departments.